اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں افشین کراچی سے. السلام علیکم افشین. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر شہانہ سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر. ڈاکٹر میرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ایئر مجھے کافی یعنی بڑے سائز کا فائبرائڈ ڈائگنوز ہوا تھا, تو اس کے بعد میری ڈاکٹر نے ہسٹیکٹومی کر دی تھی. لیکن اس کے بعد سے جو ہے مجھے وہ یعنی 1 سال تک تو میں بالکل سیٹ رہی, لیکن 1 سال کے بعد سے جو ہے مجھے بہت زیادہ ہاٹ فلیشز اور میری کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہو گیا ہے بالکل. میری ہڈیوں میں پین اور یہ بہت زیادہ رہنے لگ گیا ہے, تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ دیکھیں, اگر تو انہوں نے آپ کی اووریز چھوڑ دی تھی تو آپ پھر بھی تھوڑا بچ گئے ہیں سرجیکل مینوپاز میں. نہیں ڈاکٹر صاحب, اووریز بھی ریموو کر دی تھی, کمپلیٹ ہوا تھا. یہ اس کو کہتے ہیں سرجیکل مینوپاز. ایک تو ابھی یہ بات کہہ رہی تھی نا, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, نیچرل مینوپاز. نیچرل مینوپاز کی سائنس کو بعد میں سمجھیں گے کہ وہ کیوں خطرناک ہوتا ہے اور خالی لائف سٹائل آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا. اس کی سائنس پہ میں بعد میں بات کروں گی. آپ کا میں یہ جواب دے دیتی ہوں کہ سرجیکل مینوپاز جب آپ کو ہو جاتا ہے تو جو آپ کی چینجز آہستہ آہستہ آنی تھیں 50 سال 45 کے بعد, وہ آپ کو 30s میں جس دن آپ کی اووریز نکالی, آپ کے ہارمونز جو ایسے نیچے جانے تھے وہ ایسے نیچے چلے گئے. اٹس اے کرائم کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو ہارمونز دیے بغیر گھر بھیج دے, کیونکہ آپ کی جو آپ نے ایکسلریٹر ہوتا ہے نا جو گاڑی چلانے والا, اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے اور اب تیزی سے آپ انفلیمیشن کی طرف جا رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ جو بڑھاپے کی چینجز آنی تھیں آپ کو 50 سال کے بعد, یہ سلو پروسیس ہے. سمٹمز ایک بات ہوتی ہے, سمٹمز آپ کو آ رہے ہیں جو آپ کے جسم آپ کو بتا رہا ہے کہ یو نیڈ ہیلپ. آپ جا کے اپنا لائف سٹائل اچھا کرو, اپنے اربز لیں, آپ ایکسرسائز کریں, اپنے سٹریس کو کم کریں, اپنی نیند کو اچھا کریں, آپ جڑی بوٹیاں لیں, آپ جس طرح پرمروز کہہ رہے تھے, یا شتاوری لے لیں, یا اس طرح کے میگنیزیم وائٹامن D3, آپ اپنی غذا کو اچھا رکھو. یہ ساری چیزیں آپ کو سرٹن ہیلپ کریں گی. لیکن اب آپ کے اندر انفلیمیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا, آپ کو ہارمونز پہ چلے جانا چاہیے جلد از جلد. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 70 سال میں جا کے 60 سال میں آپ کو وہ بیماریاں نہ آئیں جو کہ بڑھاپے کی بیماریاں, کیونکہ سلو پروسیس آپ کے اندر شروع ہو گیا, آپ بایورنٹیکل ہارمونز شروع کر دیں جلد از جلد. اچھا مجھے بتائیں, یہ آپ نے بات کی اووریز اگر ریموو کر دیں, اور بہت ساری جگہوں پہ اووریز ڈرل بھی کر دی جاتی ہیں, اب تو آج کل کوئی نہیں کرتا. ڈرلنگ از اندر تھنگ جو کی جاتی تھی PCOS وغیرہ کے, اب تو اس بالکل آبسلیٹ چیز ہے, کوئی نہیں کرتا. ڈرلنگ بھی اسی وجہ سے اب کم ہو گئی ہے. ایک تو بہتر علاج آ گئے ہیں, اینڈ دوسرے آپ زیادہ ڈرل کریں گے تو اس سے بھی چانس ہے کہ آپ اووری کو سارٹ آف اس کا جو پوٹینشیل ہے کم کریں. اچھا دیکھیں ڈاکٹر نیدا, فائبروئڈ تھا اتنا بڑا, 7 اووریز بیچاری اگر ہیلدی تھیں تو ڈاکٹر نے نکال دی کہ چلو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اٹس اے کرائم کہ آپ وی ریئلی ڈونٹ نو کیوں نکالی, کیا ہوا, لیکن اس میں روٹین میں نہیں نکالنا چاہیے. روٹین میں نہیں, آپ کی ہیلدی اووریز کو کوئی نہیں چھیڑنا چاہیے. لیکن دیکھو اگر ہسٹریکٹمی بھی کریں نا اگر آپ, تو آپ کا جو بلڈ سپلائی ہوتا ہے بچے دانی کا اور اووریز کا واپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو کلینکل ریسرچ دکھاتا ہے کہ اگر ہسٹریکٹمی کر دیں سے 2-3 سال پہلے, اگر آپ کو 50 میں ہونا تھا مینوپاز, تو ہو سکتا ہے آپ کو 3-4 سال پہلے ہو جائے. اور اگر آپ نے اووریز نکال دیں, وہ تو آپ نے سورس آف ہارمون ختم کر دیا. اور اس کے ساتھ کہ آپ نے وہی بات کی کہ کرائم اگر آپ اپنے پیشنٹ کو وداؤٹ ہارمونز دیے اس کو گھر بھیجیے. اچھا ہمارے ساتھ مسز نعیم موجود ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میڈم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. میڈم کیوں کہہ رہی ہیں مجھے, میرا نام لیں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ پاک, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک. آپ بتائیے. اچھا میرے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی, میرے تقریباً 15-16 سال ہو گئے ہیں شادی کو, میری اولاد بھی نہیں ہے. میڈیکل تو ہم لوگ پہلے کلیئر تھے, لیکن ابھی بڑی مشین کا میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا, یوٹلس میں میری رسولی آئی ہے اور انڈے دانی میں بھی رسولی آئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا آپریٹ ہوگا تو بچے دانی یعنی کہ نکال دی جائے گی. تو میرے میاں کہہ رہے ہیں میں نے نکالنے نہیں دینی, تو آپ کوئی ایسا حل بتائیں جس سے میری یہ رسولیاں بھی ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے. میں نے ہر قسم کا علاج کروایا ہے, اور جوڑوں کی مجھے درد رہتی ہے, اور اس کے علاوہ سر میں بھی شدید درد ہے, ایسے سر میں جس طرح کوئی چیز نہیں مت کے گھومتی ہوتی, اس طرح تکلیف ہوتی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے کوئی ایسا حل بتائیں کہ میری اللہ تعالیٰ مجھے یہ تکلیف سے بھی دور کرے اور مجھے اولاد سے بھی نواز دے. مسز نعیم, ویسے اگر میں پوچھنا چاہوں آپ کی ایج کیا ہے؟ میری ایج ہو گئی ہے تقریباً 40 کے قریب اب ہو گئی ہے. 40 کے قریب. چلیں مسز نعیم ہمارا شو دیکھتے رہیں, مجھے بتائیں. دیکھیں یہی سارے افسوس بھی ہوتا ہے, اور مطلب جو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کریں. 40 کی عمر میں کتنے عرصے سے علاج کراتے چلے آ رہے ہیں, رائٹ. اور اب کیا ہے حل, فائنل حل یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ سب نکال دیں, لیکن انہیں تو اولاد چاہیے. اولاد چاہیے بالکل. ایسے پیشنٹس کو میرے خیال سے تو جلد از جلد, جیسے مسز نعیم بول رہی ہیں,
प्रॉपर फर्टिलिटी सेंटर में जाएं, क्योंकि 40 में भी ऐसा नहीं है कि औलाद होने का 0 चांस है। हमारे पास गनीजा अहमद आई, वो बता रही है ना 40 में मतलब मुश्किल नहीं है, लोग करते हैं। लेकिन वही बात है कि एक जनरल प्रैक्टिस में अगर आप सिर्फ दवाइयाँ खाते रहेंगे तो आपको शायद उसका कोई नतीजा नहीं मिलने वाला। आपको प्रॉपर जो नेक्स्ट लेवल के जो इलाज होते हैं, IVF होता है या और कुछ, लोग करवा रहे हैं, तो लोग करवा रहे हैं। अगर कर सकते हैं अफोर्ड तो, और सेफ है ये इलाज, मतलब ये हर तरह से ये एक नॉन इलाज। लेकिन कहते हैं कि अगर IVF फेल हो जाए तो वो भी बड़ा ट्रॉमेटिक होता है बंदियों के इसीलिए लिए। मैंने कहा कि फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से अगर कंसल्टेशन करें, बिकॉज वो आपको स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करते हैं उस प्रोसेस में। आपको बताते हैं आपके इस रसोली में, उस रसोली के साथ, आपकी उम्र के साथ आपका क्या चांस बनता है, और फिर आप डिसाइड करें कि क्या आप ये चांस लेना चाहते हैं कि नहीं। एक है कि 0% चांस है तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा, लेकिन अगर आपको कह रहे हैं कि आपको 10% चांस है, 15% चांस है, मे बी 5 लोग नहीं लेना चाहेंगे लेकिन 2 लोग उस चांस को ले लेंगे। हाँ, देते हैं, बिल्कुल लेते सो हैं। मेरे ख्याल से इनको जल्द से जल्द जो है वो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास बिल्कुल जी, जाना और चाहिए। इतनी मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं मेरी जान, तो आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। मैं ज़रा नफ्सियाती, क्योंकि देखिए वही बात कर रहे थे ना कि जब बहुत वल्नरेबल आप पे एक स्टेज आती है, जब आप माहवारी होती है आपको पहली बार जब होते हैं माहवारी, तब उसके बाद जब आप कंसीव करते हैं, जब आपका बच्चा पैदा होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उस वक्त जो लोगों की बातें आपको याद रहती हैं, माहवारी के टाइम की जो बातें कहीं भी आपको याद रहती हैं, ऐसे पेरीमेनोपॉज में, फिर उसके बाद मेनोपॉज में भी एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जो लोगों के आपके साथ रिएक्शन होते हैं वो आपको याद रह जाते हैं। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखें, हमारी जितनी भी हमारी लाइफ में जो हैपनिंग्स हो रही है ना, तो हमारी जो भी अच्छी मेमोरीज भी और ये मेमोरी होती है ना, ये यानी जो भी मेरी लाइफ में हुआ, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय मेमोरी सिस्टम। तो ये सारी शेल्फिंग हुई होती है, यानी इसका मतलब मेरे लाइफ के इवेंट, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स रखी होती है ना, ये इस चीज़ की बुक है, ये इस चीज़ की बुक है, इसी तरह से हमारी लाइफ, ट्रॉमा पड़ा है, हमारे बताओ, ब्रेन में उस एज का stored निकाल के है। ले जी आती बिल्कुल, हूँ। वो लाइब्रेरी में एक कहते हैं ना शेल्फिंग हुई हुई, और ये सारी मेमोरीज और ट्रॉमाज हमारे वहाँ पे स्टोर्ड होते हैं। तो उससे सिमिलर कोई भी इवेंट हमारी लाइफ के बीच में होता है ना, हमारे ब्रेन का एक जो है इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल और अनरियल में नहीं कर सकता। लाइक जैसे मैं एक मिसाल दूं इस वक्त के आपके सामने, मैं कहूँ कि लीमू है, ठीक है, और उसको हम काटते हैं, ठीक है, और उस पर मैं चाट मसाला लगाती हूँ, उसको आप मुंह में लें तो पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, देयर इज नो लेमन हियर, लेकिन आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसी तरह से वो वाकयात आपकी जिंदगी में अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसकी जैसे ही सोच आती है, तो क्योंकि रियल और अनरियल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता ब्रेन, यस, तो ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है। तो वो उस वक्त आप उन इवेंट्स को रिलिव करते हैं, तो वो उस वक्त का ट्रॉमा जो उस वक्त आपको कहा गया, तो इसका मतलब है एवरी टाइम जब उनको वो उनकी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल आया होगा, तो वो सारी उनकी मेमोरीज, क्योंकि वो सारी एसोसिएटेड चीजें फिर आप रिलीव का मतलब ये है कि आप फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको, तो वो उसके साथ आप एक्सपीरियंस करते आए हैं, वो आज तक वो लाइफ में फिर वो कहीं ना कहीं, और आप इस जितनी दफा आप एक्सपीरियंस करेंगे उस ट्रॉमा ने उस वक्त जितना आपको इफेक्ट किया था, वो आज भी आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को उसी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। इस बात को भी ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जब हम इन तमाम फेजेस के वाले से बात करें, तो आप अपनी ज़िंदगी में भी एक अलग फेज पे चल रहे हैं। अगर मैं मेनोपॉज के वाले से बात करें, तो जब खवातीन जब मेनोपॉज को हिट करती हैं, तो शादियाँ हो चुकी हैं, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी एज में पहुंच गए हैं, बच्चों की शादी होने वाली है, फिर बच्चों को अपने करियर की चॉइसेस बना रहे हैं, घर में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, और वो प्रेशर एक अलहदा है, वो मेंटल एग्जर्शन अलहदा है बच्चों को लेके, और उस मेंटल एग्जर्शन में ये जो आपके अंदर चल रहा है, तो ये कितना मुश्किल होता होगा। यानी वो यानी आप ये कह लें कि बाहर भी तूफान और एक अंदर भी तूफान चल रहा है, तो आपको उन दोनों को जो है ना मैनेज करके चलना है कि उसको भी, कि वो स्टॉर्म आपको इफेक्ट नहीं करे। तो उसमें बहुत जरूरी है कि आपकी जो लाइफ में हम कहते हैं ना कि जो एक तो जैसे बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें की कितनी नई चीजें सीखी हैं उन्होंने, जैसे कि आप देखें कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको बताए होंगे, हम लोग सुबह से शो में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हर खातून को वो सिम्टम नहीं हो रहे हैं। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि वेट गेन होता है, हर एक का वेट गेन नहीं होता है, लेकिन अगर मैंने सोच लिया है तो फिर मैं खाती पीती भी रहूंगी, वजन बढ़ जाएगा कि मैं तो बस इससे गुजर रही हूँ, मेरा वजन बढ़ना है। अकीके पे जो आपने 4 गुलाब जामुन पूछते हैं ना, वो लगने और आप डोंट थ्रो इट ऑन मेनोपॉज। तो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखने की बहुत जरूरी है। फिर आपकी कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, जिसको कहते हैं बहुत हल्की फुल्की टेक्निक्स हैं, जो हम जिंदगी में वैसे भी कर सकते हैं। कुछ आपने भी जैसे बताया कि हम भी डिस्कस कर रहे थे कि हम कोई ना कोई ऐसे शोज देख लेते हैं जो कि आपको आपके मूड को अच्छा कर देते हैं, तो वो एक लाफ्टर थेरेपी भी आपकी हो जाती है, वो कर लें। अब डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हम नॉर्मल बैठे हुए मेनोपॉज इज द टाइम कि जब आपको ना अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा मिलने की जरूरत है, और ये बच्चों को भी चाहिए, मियाँ को भी चाहिए कि खवातीन को दे दे थोड़े पैसे, जाके शॉपिंग करके आए, अपनी दोस्तों के साथ बैठे कॉफी शॉफी पी कर आए, क्योंकि ये कैसे टाइम है कि जब अपनी दोस्तों की वो बाकी आपकी फ्रेंड्स जो कि एग्जैक्टली उस चीज से गुजर रही हैं, और जब आप दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक इट हेल्प्स यू लॉट, क्योंकि आपको ये भी नहीं लगेगा कि आई एम ऑड वन आउट,
दैट्स ट्रू। एवरीवन हैज टू गो थ्रू इट, हर बंदे को गुजरना है, तो आपको वो एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए कैसे है, अब गुजारना कैसे, इस पे बात करते और हैं। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता होना कि ये चीजें हाँ, होनी है, तो हाँ। फिर आप उनको एक्सपीरियंस उतनी इंटेंसिटी से नहीं करते। हाँ। लेकिन मुझे एक चीज पता ही नहीं है कि मैं हाँ। मेरा ये मूड चेंज आएगा, मैं इरिटेबल होंगी, मुझे डिप्रेशन होगा। अब मुझे पता है ना कि आई फील, मैं अब डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, तो आई डू समथिंग। मैं बाहर निकलूंगी, दोस्तों से बात करूंगी, मैंने कोई मूवी देख ली, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर दिया, मैं अकेले रूम में नहीं ये मैं डॉक्टर बैठूंगी। मुफ्ती आपसे भी इस हवाले से जानना चाहूंगी हाँ। कितना जरूरी है, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद है मेहमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेहमूना, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जुम्मतुल मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आज भी सकीना की शहादत भी है, फिर आप मजलिस है तो घर में, तो फिर आप सबके लिए खुशी दुआ करूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, इतनी खवातीन जो बच्चों के लिए परेशान है, तो मैं उन्हीं के सदके से दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद भी करें। जी इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। इलाही आमीन। जी अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की कामयाबी अता फरमाए। मैं आप सबको पंजाब पाक के सदके में, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं डेली आपका शो देखती हूँ। थैंक यू मेहमूना, बहुत शुक्रिया। मेहमूना को सवाल है आपका। जी जी, असल में ना जैसे मुझे शुगर, मैंने भी पहले भी किसी शो में बताया था, शुगर की वजह से मुझे ना जैसे महीने में 2 दफा भी आ जाते हैं। अच्छा हाँ फिर मेहमूना आपकी ये एज मतलब क्या है जान? जी मेहमूना आपकी एज क्या वैसे? मेरी 34-35 साल की है। अच्छा, she's very पहले young. नॉर्मल आते थे, अब जैसे कभी महीने में दो दफा भी आ जाते हैं, 3 दफा भी। ठीक शुगर है। काफी हाई रहती है ना, शुगर हाई बीपी रहती का भी मसला है, अच्छा ठीक इसलिए है। कुछ बता दें। डॉक्टर शबाना। शुगर का मसला तो अलग है और माहवारी का मसला अलग है। तो अगर शुगर उनको है तो जाके अपनी शुगर को पहले कंट्रोल करें। शुगर की तरफ चली हाँ, और डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा ना, और फैमिली हिस्ट्री होगी, जेनेटिक्स होते हैं आपके, तो अपना वेट भी होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अपने वेट को कंट्रोल करेंगी, साथ शुगर को कंट्रोल करेंगी। जो माहवारी है उसके लिए तो अल्ट्रासाउंड करवा के देखें कि माहवारी क्यों ख़राब है, और अपने हार्मोनल चेक जाके गायनेकोलॉजिस्ट को देख लें कि अपना फाइब्रॉइड्स तो नहीं है। सो खाली पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में नहीं है, ये एक पहली वाली स्टेज है जहाँ पे उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। तो हार्मोन्स को जाके चेक करवा के हार्मोन्स को फिक्स करें। और जो रीज़न है, रीज़न हमेशा खाली हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, ऑर्गेनिक लीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके हो रहा है, तो वो जाके चेक करवाएं आप और अपना जो है उसको फिक्स कर लें। लेकिन मुझे बताएं कि अभी जो हम बात कर रहे थे, जब हम ये बहुत ज़्यादा सर पे सवार भी करते हैं, अच्छा, ये कितना ब्लॉक कर देते हैं हमारी चीज़ें, चलिए। हमारी ट्यूब्स को, ये भी चीज़ें कितना ब्लॉक कर देती है कि आप बार बार कह रहे हैं ना कि ट्यूब्स ब्लॉक है, तो हमारी ये जो सोच है, जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर है, ये हमारी कुछ साइंस की बातें कर लेते हैं, ठीक है, एविडेंस बेस्ड साइंस की एंड रिसर्च की बातें करते हैं। ये जो भी बातें हो रही हैं लाइफस्टाइल की, आप आयुर्वेदा देते हैं, आप हर्ब्स देते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं अपने ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए, ये सब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आता है। जब हमारे पास ऐसी खवातीन आती हैं तो ये फर्स्ट लाइन होता है जिसमें हम खातून को कहते हैं कि अगर आप इतना खाओ पियोगे, वज़न आपका कम नहीं हो रहा। उसके पीछे भी पूरी साइंस है कि वज़न क्यों बढ़ता है पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में। आपके जो GLP-1 या लेप्टिन, ये वो वाले हार्मोन होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्फ्लेमेशन करता है जिसकी वजह से पेट के आसपास चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो अब अगर आपकी चर्बी बढ़ रही है, मेरे पास खवातीन आती कहती हैं हम फाके करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, मेरा मियाँ जाके 1 हफ्ते में 10 पाउंड कम कर लेता है और मैं कर करके मर गई, मेरा कोई वजन ही नहीं कम होता। तो आपने उसको साइंस समझानी होती है कि दिस इज फैक्ट, दिस इज रियल, ये कोई मूवी नहीं चल रही कि आप जाके उनको, फिर आपको उनकी बेसिक साइंस समझाने के बाद उनका जो है आपने ट्रीटमेंट देना होता है। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपके सिम्टम्स को हेल्प करता है। जिस तरह आपने कहा कि मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि पेरीमेनोपॉज में एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों होता है। हाँ, मुझे नहीं, आप समझे कि आप कह रहे हैं मदिया ने इनको कहा ब्रेक में मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो। देखिए, एक है, मैंने तो अब सोचा मैं तो दूंगी डिप्रेशन, आपकी मैंने नहीं लेनी पिछली डिप्रेशन। हिस्ट्री है, ठीक है, आपकी पिछली हिस्ट्री थी, 20-30 साल में किसी लड़की को एंग्जाइटी डिप्रेशन था, उसकी वो हिस्ट्री है। एक बिल्कुल सेहतमंद लड़की है, उसको कुछ भी नहीं है, 40 साल में जाके उसको एकदम माहवारी खराब हुई, उसको ये सिम्टम्स आना शुरू हो गए विदाउट एनी प्रायर हिस्ट्री। आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो एंटी एंग्जाइटी है, दैट इज कॉल्ड एंटी एंग्जाइटी। आपके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल सबसे पहले पेरीमेनोपॉज में नीचे जाते वन ऑफ हैं। द रीजन जो खवातीन अक्सर कहती है पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती Absolutely. है। अच्छा देखते रहे, हम इसी बात को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और वो जो खवातीन इस वक्त हुआ ग्लू टू द स्क्रीन, क्योंकि हम बात मेनोपॉज की कर रहे हैं, वो ये जरूर शिकायत करते हैं कि पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत घबराहट होती है। इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। Welcome back after the break.